Praise God, family. Praise the Lord. We are on the 13th day of our Daniel prayer and fasting. आज 13वां दिन है And we are really excited to be back with you because I'm speaking, and in fact continuing on the series that I was speaking on the 4 strategies from the life of 4 mighty men in the Bible. और मैंने 4 आत्मिक युद्धों का सिद्धांत सिखाया था। पिछले बार मैंने 2 बताया है, आज मैं अगला 2 बताने वाला हूँ आपको। Today I'm going to speak from the life of David. आज मैं दाऊद के जीवन से बताऊंगा आपको। And you know the story that David fought with a giant called Goliath. और आप ये कहानी जानते ही होंगे कि दाऊद गोलायत से लड़ता है। And Daud was a shepherd boy. और दाऊद एक चरवाहा था। And he had gone with a tiffin box for his brothers who were in the army of Israel. और वो भोजन लेकर अपने भाइयों के पास उस रणभूमि में वो पहुंचता है। And he heard that there was a giant from the side of the Philistines, and he was screaming and he was defying the name of our God. और वो सुनता वहाँ पहुँचकर कि फिलिस्तीनियों की सेनाओं में से एक लंबा सा दानव वो ललकार रहा है उसके प्रभु के नाम को। And he got very angry. और वो क्रोधित हो जाता उसकी ललकार को सुनकर। And he said, "How dare that Philistine giant defy my God?" और वो कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे खुदा को ये ललकारे। And he said, "I'm going to fight and kill that giant." और उसने कहा मैं इस दानव को मार गिराऊंगा। His brother said, "Get away from this place. You cannot fight." और उसने उसके भाइयों ने कहा स्थान से तुम हट जाओ, तुम इससे लड़ नहीं सकते। But he said, "No, I'm going to fight." उसने कहा नहीं मैं लड़ूंगा। Anyhow, the matter reached the king Saul. और ये सारी बातें राजा सौल तक पहुंचती है। And David says, "I am very determined to kill this giant." और दाऊद कहता है कि राजा सौल मैं इस दानव को मार गिरा सकता हूँ। But anyhow, to cut the story short, David went to fight against this giant. और राजा सहमति देता है और दाऊद लड़ने को पहुंचता है। You know how did he go to fight with this giant? आपको पता है उसने कैसी तैयारी की उस दानव से लड़ने के लिए? He took a sling उसने गुर्दैल लिया and he took 5 sharp stones. और 5 चिकने पत्थर लिए। Let's read out from the Bible, 1 Samuel chapter 17, 45 to 47. आइए हम वचन से देखते हैं। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। Amen. Hallelujah. So he comes in the name of the Lord. That was powerful, isn't it? और वो ईश्वर के नाम से जाता है लड़ने को। Many a times there comes giants that stands before us. बहुत बार ऐसे ही दानव हमारे सामने हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। And when we look to our situation, it can be people, it can be situation, it can be some problems, some issues, and it stands like a mighty mountain. और वो समस्याएं, वो जटिल स्थितियां पहाड़ के समान हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाती है। And we feel that we are so little. और हमें लगता है हम कितने छोटे हैं। But just imagine what gave strength and confidence to this shepherd boy David to fight against this giant. It was his faith. और आप सोचिए इतना छोटा सा ये बालक जो छोटा सा चरवाहा था, कम उम्र का था, इतने बड़े दानव से कैसे लड़ा? केवल विश्वास से। What did he say? He said, "I have come to you in the name of our Lord, the heaven armies." और वो कहता है मैं अपने ईश्वर के नाम से तेरे विरुद्ध आया हूँ। And he said, "How dare you defy my God?" तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे खुदा को ललकारो? He is the God of Sabaoth. He is the God of the heaven armies. He has powerful presence is there, and in the name of Jesus all things are possible. और वो तो परमेश्वर सबायोत का परमेश्वर अर्थात उसके पास बहुत सारे सैनिक हैं स्वर्ग में और उसके द्वारा हर चीज संभव है। And what did he do? You know, he ran and he pulled his string, and one little tiny sharp stone went and killed
big giant called Goliath. और वो गोफन लेता है, एक पत्थर डालता है और जोर से खींचता है और वो पत्थर जाके गोलायत के सिर पे लगता है, वो मर जाता है, गिर जाता And है। verse 46 says, today the Lord will conquer you. That was his confidence. और 40 कहता है कि आज परमेश्वर तुम पर विजयी हुआ। And I will kill you and cut off your head, and then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. और वो कहता है मैं तेरे सिर को काटूंगा और पक्षियों को तेरे देह खाने को दूंगा, तब इस्राएल में सब जानेगा ईश्वर है। What a confidence. कितना आत्मा बल परमेश्वर के ऊपर। When you have faith, जब आपके अंदर विश्वास होता है, the Lord will give you confidence. परमेश्वर आपको आत्मा बल देंगे। Do not look to your enemy. Do not look to your problem as a big thing. But in the name of Jesus, in boldness, in confidence declare, and you shall see the mightiness of God. और अपनी जब आत्मा बल आप परमेश्वर में लगाते हैं, आपको परमेश्वर साहस देगा, शक्ति देगा और उसके नाम से आप महान महान कार्यों को पूरा होते देखेंगे। But the enemy always intermediates us. लेकिन शत्रु शैतान हमेशा में भयभीत करता The है। Satan tells us that you cannot, because the challenge is huge. But I tell you, all things are possible in the name of my God. His name is Jesus. शैतान हमेशा आपसे कहेगा तुम नहीं कर सकते, ये होगा नहीं, ये असंभव है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ हर चीज संभव है यीशु के नाम से। And he loved his God with all his mind, with all his soul, with all his strength, with everything he loved वो God. पूरे मन पूरे आत्मा से वो यीशु पे विश्वास करता और अपनी शक्तियों से उसने गोलायत को मार गिराया। And he went and he cut the head of this giant. और गोलायत के सिर को वो काटता है। My friends, have faith in God. ईश्वर पे विश्वास Have रखें, faith in Jesus. यीशु पे विश्वास रखें, Love him, उससे प्रेम करें and he will give you the confidence. और वो आपको आत्मा बल आत्मा शक्ति देंगे। Whatever may be the challenge and whatever may be the battle, कुछ भी चुनौती क्यों ना हो, but have faith विश्वास and love your रखें, God, उससे आप प्रेम करें and you will always win. और आप हमेशा जीतेंगे। My friends, the second character that I will be talking about, his name is Joshua. और दूसरा जो चरित्र मैं आपको आज सिखाऊंगा उसके जीवन से वो है यहोशू। Joshua was a great fighter. यहोशू बहुत बड़ा वीर योद्धा था। And if you read Joshua chapter 1, the first chapter talks about the Lord speaks to Joshua. Don't worry, Joshua. Do not be discouraged. Do not be dismayed, for the Lord God is with you. और पहला यहोशू 6 और 7 में हम देखते हैं कि खुदा यहोशू से कहते ना तू निराश हो, ना तू हताश हो, क्योंकि स्वयं मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। Be strong. दृढ़ रहो, Be courageous. हिम्मत रखो। That's what God is speaking to us, even the same thing. Be strong, be courageous. Do not be discouraged. Do not be dismayed. परमेश्वर आपसे भी कह रहे हैं मजबूत बने, उत्साह रखे, निराश ना हो। Devil is a liar. शैतान झूठा है, He comes to make us feel that we are so weak. वो हमेशा में महसूस कराता है कि हम बहुत दुर्बल हैं। He comes and tells and whispers and makes us feel that we cannot win over our situation because our situation is so big. और वो hमेशा में महसूस कराता है कि हम जीत नहीं सकेंगे क्योंकि हमारी स्थिति हमसे बहुत बड़ी है। But in order to win the game, I tell you, from God's side, you must trust His word. लेकिन आपको अगर कोई भी युद्ध जीतना है, आपको परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा पे पूरा भरोसा रखना है। When the enemy comes to discourage you, say, "Get out, you enemy. I will not be discouraged." और I जब will not be शत्रु आपको discouraged." निराश करने आएगा, उसे आपको भगाना है विश्वास के बल से। My friends, so Joshua was determined to be strong because the Lord told him to do so. और यहोशू ने अपने मन में संकल्प कर लिया था कि वो दृढ़ रहेगा क्योंकि खुदा ने कहा कि तुम दृढ़ बने रहो। Joshua chapter 1 and verse 8 says, यहोशू का 1:8 कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Amen. Amen. That's the Bible.
ये वचन है, बाइबल है। That's the word. ये वचन है बाइबल का। That's the truth. ये सच्चाई है। When you know the truth, and the truth will set you free. जब आप सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई आपको आजाद करेगा। So my friends, the other key is the word. The word is powerful. और दूसरा जो है वो है वचन। वचन बहुत सामर्थ्यशाली है। Joshua meditated the word. और यहोशू वचन पे मनन करता था। Joshua listened to the Lord, और यहोशू परमेश्वर की आज्ञाकारी था। and he was very focused in doing और so. वो हर चीज में बड़ा केंद्रित था करने के And the लिए। other thing Joshua meditated was to live his life a holy life, because God is holy. और जोशुआ समर्पित था कि वो पवित्र जीवन जिएगा। Joshua chapter 5 verse 2 and 3 says, और यहोशू का 5, 2 और 3 हम देखते हैं। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नाम टीले पर इजराइलियों का खतना कराया। Amen. These are the people actually who left. They were born during the, in the desert. They were not born in Egypt, but they were born in the desert. और ये जो पीढ़ी था जो मिस्र से निकला था, इनका जन्म वनभूमि में हुआ था। So this generation, they were not circumcised people. और इस पीढ़ी का खतना नहीं हुआ था। Circumcision was actually a mark of the Lord in the body. और खतना परमेश्वर का एक छाप है मनुष्य के शरीर के ऊपर। Today in New Testament, baptism is someone compare it circumcision. और अगर हम नया नियम में देखें तो बपतिस्मा ठीक इस खतने के समान ही है। But you know what Bible says? आपको मालूम है बाइबल क्या कहता है? The Bible says the Holy Spirit is a seal of God, and it will be open on the day of redemption. और बाइबल कहता है पवित्र आत्मा वो छाप है, वो मोहर है जो हमारे ऊपर लगाया गया है उस छुटकारे के दिन के लिए। You know, the Holy Spirit is that mark of God unto our lives. और पवित्र आत्मा वो परमेश्वर का छाप है हमारे ऊपर। The Lord wants to give the Holy Spirit in our life as a और mark. यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देना चाहते हैं एक चिन्ह के रूप में। But the Holy Spirit will come upon your life. पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएंगे, You have to be holy. आपको पवित्र बनना है। Without holiness, बिना पवित्रता के you cannot see God. That's what the Bible आप ईश्वर says. को देख नहीं सकते। Joshua chapter 5 and verse 15 says, यहोशू का 5 का 15 कहता है, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब Amen. यहोशू ने वैसा ही किया। Amen. What the Lord said, take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did the same. और ईश्वर ने उसे कहा अपने पाँव की जूती उतार, क्योंकि जहाँ तू खड़ा है वो पवित्र है। यहोशू ने वैसा ही किया। The Lord is holy, my friend. ईश्वर पवित्र है मेरे मित्रों। Without holiness, we cannot see God. बिना पवित्रता का हम ईश्वर को नहीं देख सकते। And without faith, we cannot please God. और बिना विश्वास का हम परमेश्वर को खुश भी नहीं कर सकते। God is looking to your life. ईश्वर आपके जीवन की ओर देख रहे And you हैं। know those areas of your life that you need to ask God for a cleansing. आपको मालूम है कौन से जगह में आपको पिता से शुद्धिकरण मांगना है। My friends, मेरे मित्रों, every battle is a won battle हर युद्ध जीता हुआ युद्ध है, because of Jesus' death on the cross and क्योंकि यीशु resurrection. हमारे लिए क्रूस पे मरा और फिर पुनरुत्थानित भी हुआ। When we go through trials and when situation comes and stands as a mountain, fear not, for the Lord God is with us. जब स्थिति आपके विरुद्ध खड़ी होती है, पर्वत के समान आपके सामने खड़ी हो जाती है, डरिए नहीं, क्योंकि खुदा हमारे संग है। Enemy sends us to destroy us, शैतान योजना बनाता है हमें बर्बाद करने के लिए, but God makes that situation for us to win. लेकिन ईश्वर स्थिति को चुनता है हमें जिताने के लिए। So stop fighting battle in your ways. इसलिए अपने तरीके से लड़ना बंद करें, Fight battles in God's way. ईश्वर के तरीके से युद्धों को लड़ें। So from both the characters, David and Joshua, और यहोशू और दाऊद के जीवन से हम देखते हैं, all that we learned हमने सीखा है is to love your God परमेश्वर से प्रेम करना with सीखा, all your heart, mind, strength and पूरे soul. मन, आत्मा, शरीर से प्रेम करना सीखा है। Love Him
उनसे प्रेम करें, have faith in Him, उस पे विश्वास करें, obey Him, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, be holy, पवित्र बने and be filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भर जाएं। And you will see God's presence upon your life. और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में The देखेंगे। Lord will guide you. ईश्वर आपकी मार्ग की अगुवाई करेंगे, The Lord will instruct you. ईश्वर आपकी मार्ग निर्देशक करेंगे And you will be moving forward each day, each moment. और प्रत्येक दिन Close आप to Him. आगे बढ़ते चले जाएंगे, ईश्वर के और नजदीक आते चले And जाएंगे। when the Lord will come, जब ईश्वर आएंगे and He will take us with आपको Him. लेके चले जाएंगे। Amen. आमीन। Let's close our अपनी eyes. आंखों को बंद करें। Today, those who are hearing and listening to this message, आज इस वचन को सुन रहे हैं, if you are going through some hard times in your life, अगर आप जीवन की किसी कठिन स्थिति से गुजर रहे and हैं, if you are standing before a mighty mountain and a giant and you say, God, where are you? अगर आप किसी पहाड़ के सामने खड़े हैं, आप दानव के सामने खड़े हैं, आप पूछ रहे खुदा आप है कहाँ? I tell you, God is just by your side. मैं कहना चाहती हूँ ईश्वर बिल्कुल आपके बगल में खड़े हैं। But all that God is looking this day is preparing your heart. प्रभु आज आपके दिल को तैयार कर रहे हैं। Get ready. तैयार हो Be जाएं, prepared प्रस्तुत हो जाएं in His way. उनके तौर तरीके में। Gracious God, we come to your presence today, God, and I pray that, Father, draw your people unto you. अनुग्रहकारी पिता अपने लोगों को अपने नजदीक में खींच ले, Prepare their lives उनके जीवन को तैयार करें in your ways, अपने तरीके में, that they become strong in your name, ताकि वो मजबूत बन जाए आपके नाम में, and they can fight every battle. ताकि वो हर युद्ध लड़ सके, They can be a terror unto the devil. ताकि शैतान उन्हें देख कर डरे और कांपे। Every strongholds, every lie, every hold of the darkness start breaking down in the name of Jesus Christ. शैतान का हर झूठ मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से। हर बंधन, बाधा, स्ट्रॉन्ग होल्ड टूटने लगे यीशु के नाम से। Believe, my brothers, believe, my विश्वास करें मेरे sisters. भाई और बहनों, Declare it. घोषणा करें अपने विश्वास का, Read the word. वचन पढ़े, Speak it out. उसे मुंह से अंगीकार करे Live a holy और life. पवित्र जीवन जिए In Jesus' name, यीशु के नाम से। the Lord of the heaven armies और स्वर्ग की सेनाओं का प्रभु will fight your battle. आपके युद्धों को लड़ेगा In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। आज आपने फिर सिद्धांत सीखा कि आप आत्मिक युद्धों को कैसे जीत सकते हैं। अगर दाऊद और यहोशू के जीवन से सीखे हुए सिद्धांतों का पालन करेंगे, आप भी उनके समान विजयी बनेंगे। आप भी अपने जीवन के गोलायत को मार गिराएंगे। आप भी यहोशू के समान हर युद्ध जीतेंगे। एक ही है, ईश्वर से प्रेम करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और पवित्र बने। ये ना भूले कि आपका परमेश्वर पवित्र है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, प्रार्थना में बने रहें। बस 2 सप्ताह हम कंप्लीट कर चुके हैं और आखिरी सप्ताह बाकी। ईश्वर को बहुत आशीष दे। Thank you. God bless.